BRS کے کارگزار صدر KTR نے دیکشا دیوس کے موقع پر تلنگانہ بھون میں شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے زیر اہتمام آج ریاست بھر میں دیکشا دیوس منایا گیا۔ 16ویں دیکشا دیوس کے موقع پر پارٹی کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ بھون میں MLA تلاسانی سرینواس یادو و دیگر قائدین کے ہمراہ تلنگانہ تلی اور پروفیسر جے شنکر کے مجسمے پر پھول پیش کیے۔ بعد ازاں انہوں نے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر KCR نہ ہوتے تو تلنگانہ کی تشکیل نہیں ہو پاتی۔ انہوں نے کانگریس کے ان قائدین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جو توہین آمیز تبصرے کر رہے ہیں۔ KTR نے کہا کہ تلنگانہ کی تحریک میں شامل ہونے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ پھر لوگوں کو تحریک کے واقعات اور دیکشا دیوس کی اہمیت سے آگاہ کرے۔ ریاست آندھرا پردیش کے کرنول میں 2 کاریں آپس میں ٹکرا گئی، 5 افراد موقع پر ہلاک ہوئے اور 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ کرنول ضلع کے یمیگنور منڈل میں ہفتے کی صبح ایک خوفناک سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک فارچونر SUV اور ایک ماروتی سوئفٹ ڈیزائر آپس میں ٹکرا گئی۔ تصادم اتنا شدید تھا کہ سوئفٹ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس میں سوار 5 مسافر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ فارچونر میں سفر کرنے والے 2 افراد کو شدید چوٹیں آئیں، انہیں علاج کے لیے قریبی اسپتال پہنچایا گیا۔ یعنی شاہدین کا کہنا تھا کہ فارچونر جو ادونی کی سمت جا رہی تھی تیز رفتار سے چل رہی تھی اور اس نے مخالف سمت سے آنے والی سوئفٹ کار کو ٹکر دے دی۔ پولیس نے بتایا کہ متاثرین کرناٹک سے تعلق رکھتے تھے اور وہ رگھویندر سوامی مندر کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ یاد رہے کہ دونوں تیلگو ریاستوں میں وقفے سے سڑک حادثات پیش آ رہے ہیں اور کرنول میں پیش آئے حادثے نے مسافروں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ دوسری جانب پولیس نے ڈرائیوروں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ رفتار دھیمی رکھیں، ٹریفک قوانین کی پابندی کریں اور خاص طور پر خطرناک موڑوں پر احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا داساری نے کہا کہ معذورین کو ذہنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ معذورین کے عالمی دن کے موقع پر وکٹوریہ پلے گراؤنڈ چادر گھاٹ میں معذورین کے لیے ضلع سطح کے کھیل مقابلے منعقد ہوئے۔ حیدرآباد ضلع کلکٹر ہری چندنا داساری نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کھیل مقابلوں کا آغاز کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ معذور افراد کو ذہنی طاقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، انہیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور اگر وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں تب ہی ان کی ذہنی طاقت بڑھے گی۔ کلکٹر نے کہا کہ حکومت معذورین کو ترجیح دیتی ہے اور انہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ کلکٹر نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 1500 معذور افراد نے کھیلوں کے اس مقابلوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عہدیداروں کو کھیلوں کے انعقاد کے دوران خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کی۔ ضلع کلکٹر نے امید ظاہر کی ہے کہ معذور افراد بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور دیگر کھلاڑیوں پر سبقت لے جائیں گے، ملک کا نام روشن کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ صرف اس وقت تک سپریم کہلانے کا حقدار ہے جب تک وہ قانون کو برقرار رکھے اور قانون کی ذمہ داری پوری کرے۔ جمعیت علماء ہند کے سربراہ مولانا محمود مدنی نے بھوپال میں جمعیت علماء ہند کی نیشنل گورننگ باڈی میٹنگ میں سپریم کورٹ پر سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک میں انصاف کے بغیر امن و امان اور جرائم سے پاک معاشرہ قائم رکھنا ناممکن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر بابری مسجد اور 3 طلاق جیسے معاملات میں فیصلوں کے بعد یہ عام تاثر بن گیا ہے کہ عدالتیں حکومتی دباؤ میں کام کر رہی ہے۔ محمود مدنی نے کہا کہ اقلیتوں سے متعلق آئینی قواعد اور بنیادی اصولوں کی بہت سی تشریحات نے عدلیہ کے کردار پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ صرف اس وقت تک سپریم کہلانے کا حقدار ہے جب تک وہ قانون کو
बरकरार रखे और कानून की जिम्मेदारी पूरी करे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अखलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने दीक्षा दिवस के मौके पर पीरजादीगुड़ा कॉरपोरेशन हुदूद में तेलंगाना तली के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सोलहवें दीक्षा दिवस के मौके पर पीरजादीगुड़ा कॉरपोरेशन हुदूद में बड़े पैमाने पर तकरीबात मुनक्किद हुई। बीआरएस कारकुनान की जानिब से रैली भी निकाली गई। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी ने रैली में हिस्सा लिया। दरिया असना उन्होंने पार्टी के दीगर कायदीन के हमरा तेलंगाना तली के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ां मल्ला रेड्डी और बीआरएस के कायदीन ने केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि दीक्षा दिवस के नाम पर होने वाले ड्रामों को अवाम मुस्तरद कर देगी। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने हफ्ते को गांधी भवन में मुनक्किद यूथ कांग्रेस के एक इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने यूथ कांग्रेस लीडर से ख्वाहिश की है कि वो सरपंच इंतखाबात और आने वाले एमपीपी और जेडपीटी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। दरिया असना उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम बखूबी जानती है कि किस तरह से कलवा कुंटला खानदान ने तेलंगाना का पैसा लूटा। उन्होंने कहा कि अवाम से शिकस्त खाने के बाद केसीआर अपने फार्म हाउस तक महदूद हो गए हैं। दीक्षा दिवस के नाम पर होने वाले ड्रामों को अवाम मुस्तरद कर देगी। रियासती वजीर सीता अक्का ने कहा कि उन्हें अदालतों पर एतमाद है और कोविड केस की तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। रियासती वजीर सीता अक्का ने हफ्ते को कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने साल 2021 में इंदिरा पार्क में पुरअमन एहतजाज करते हुए कोविड के इलाज को आरोग्यश्री खदमात में शामिल करने का मुतालबा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने कहा कि जो जद्दोजहद की गई थी वो मुनसिफाना जद्दोजहद थी। सीता अक्का ने कहा कि उन्हें अदालतों पर एतमाद है और कोविड केस की तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि अदालत ने इस मामले की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। మరి 2020లో కరోనా టైంలో మా మీద ఆనాటి గవర్నమెంట్ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పెట్టినటువంటి కేసు నిమిత్తం నాంపల్లిలోని మనోరంజ కోర్టుకు హాజరు కావడం జరిగింది। మరి గాంధీనగర్ పిఎస్లో ఆ రోజు మేము ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నేను మరి ఆనాటి ఎన్ఎస్యుఏ ప్రెసిడెంట్ వెంకటు నేటి ఎమ్మెల్సీ అదే విధంగా అభిజిత్ విదుల్ చావ్లా మరియు రంజిత్ అనే మేము అక్కడ దీక్ష చేస్తే కరోనాను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని దీక్ష చేయడం జరిగింది। దాని మీద ప్రభుత్వం ఆనాటి ప్రభుత్వము దీక్ష చేయొద్దని అక్రమంగా కేసులు పెట్టి మమ్మల్ని కేసులలో ఇరికించడంతో మరి గత కొంతకాలంగా కేసులకు అటెండ్ అవుతా ఉన్నాం। ఈరోజు కేసుకు అటెండ్ అయితే మళ్ళీ 18కు వాయిదా వేయడం జరిగింది। మేము ఆ రోజు అడిగింది కూడా న్యాయమైన డిమాండ్, ఎందుకంటే కరోనా అనేది ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాపించింది। అది చాలా కాస్ట్ కూడా పెట్టుకునే పరిస్థితి। దానికి పేదోళ్లకు కరోనా వస్తే చాలా మంది చనిపోతున్నారు। ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే వైద్యం వాళ్ళకి అందుబాటులోకి వస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది। మరి ఆ నిరాహార దీక్షను భగ్నం చేయడమే కాకుండా మా మీద గాంధీనగర్ పిఎస్లో కేసులు పెట్టడం జరిగింది।
16वें दीक्षा दिवस के मौके पर BRSV ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में साबिक वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। BRSV के रियासती सदर E श्रीनिवास की ज़ेर निगरानी दीक्षा दिवस के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। इस मौके पर BRS सरबराह व साबिक वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। प्रोग्राम में BRSV के रियासती सतह के कायदीन, कारकुनान और तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। बाचूपल्ली में फ्लैट मालिकान ने वास्तवी ग्रुप अपार्टमेंट के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। जराये ने बताया कि बाचूपल्ली के वास्तवी ग्रुप अपार्टमेंट के रूबरू हफ्ते को फ्लैट मालिकान ने एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट की तामीर साल 2024 में ही मुकम्मल होनी थी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनकी रकम उन्हें वापस कर दी जाए। BRS रहनुमा हरीश राव ने कहा कि TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ KCR की भूख हड़ताल के बारे में अहमखाना बात कह रहे हैं। उन्हें इस बारे में बात करने का हक हासिल नहीं है। 16वें दीक्षा दिवस के मौके पर सिद्दीपेट में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद हुई। BRS MLA हरीश राव ने दीक्षा दिवस की तकरीबात में हिस्सा लिया। उन्होंने याद दिलाया कि KCR ने अलहदा रियासत के लिए 9 दिन तक भूख हड़ताल की थी और इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत खराब होने के बावजूद KCR भूख हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं थे। हरीश राव ने बताया कि KCR ने डॉक्टर से भी ये कह दिया था कि अगर वो फौत हो जाते हैं तो उनके जिस्म को तेलंगाना के तिरंगे में लपटा जाए। साबिक वजीर ने KCR की भूख हड़ताल पर नुक्ताचीनी करने और उसे ड्रामा कहने पर TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि महेश कुमार गौड़ को इस बारे में बात करने का हक नहीं है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि मजलिस एक मजबूत आवाज़ है जो आइन और कौम के हुकूक के लिए मजबूती से खड़ी है। वाशम म्युनिसिपल कौंसिल के इंतखाबात के पेश नज़र कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने एक जलसे आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मजलिस कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि एक मजबूत आवाज़ है जो आइन और कौम के हुकूक के लिए मजबूती से खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी मुसलमानों के हुकूक और शरई मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई, मजलिस ने हमेशा जमहूरी और आइनी अंदाज में जवाब दिया है। माजिद हुसैन ने BJP और शिवसेना को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये वाज़ेह किया कि मजलिस अवामी मसाइल, इंसाफ और मसावात के लिए लड़ने के लिए तश्कील दी गई थी और कोई भी ताकत मजलिस को अपने मकासद पूरे करने से नहीं रोक सकती। जमात इस्लामी हिंद कागज नगर की जानिब से मस्जिद आमिरा में हुकूक हमसाया बेदारी मुहिम चलाई गई। हमसायों के साथ हुस्न सलूक करने का पैगाम दिया गया। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में 21 से 30 नवंबर हुकूक हमसाया बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जमात इस्लामी हिंद कागज नगर के ज़ेर एहतमाम भी मस्जिद आमिरा में ये मुहिम चलाई गई, जिसमें नाजिम ज़िला आसिफाबाद मोहम्मद बशीरुद्दीन, अमीर मुकामी मोहम्मद खलीलुद्दीन, मुहिम ऑर्गेनाइज़र फजीलुद्दीन व दीकर ने हिस्सा लिया। मोहम्मद खलीलुद्दीन ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए। डॉक्टर उमर मुख्तार, अमीर मुकामी वरंगल ने शुरका को मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूक हमसाया उन्वान से मुल्क भर में 10 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। इसका मकसद हमसायों के साथ हुस्न सलूक, खैर ख्वाही और पड़ोसियों से बेहतर ताल्लुकात के जज्बे को दोबारा जिंदा करना है और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। उनका कहना था कि इस्लाम पड़ोसियों के हुकूक को गैर मामूली अहमियत देता है। कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर मोमिनीन को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने हमसायों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के ज़रिए मुसलमानों को उनकी तालीमात याद कराना है और एक मिसाली हमसाया बनने की तरगीब देना है। इस प्रोग्राम में कागज नगर की सरकर्दा तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव VC सजनार ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में
10 حریف ٹولیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ایک خصوصی عدالت کا انعقاد کیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ میں 10 حریف ٹولیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے وی سی سجنار IPS سی پی و ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے ہفتے کو خصوصی عدالت منعقد کی، جس میں بدنام زمانہ مجرموں اور دیندار انجمن آصف نگر حیدرآباد کے حریف گروہ کے ارکان نے شرکت کی۔ اس اقدام نے حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں امن کو برقرار رکھنے اور اچھے برتاؤ کو یقینی بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران کئی تفصیلی رپورٹس پر بھی اور پرتشدد واقعات پر روشنی ڈالی گئی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ وی سی سجنان نے 10 حریف گروہ سے تعلق رکھنے والے 86 سے زائد افراد کو BNSS 2023 کی دفعہ 126 کے تحت پابند کیا ہے اور انہیں 1 سال کی مدت تک امن برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ تمام افراد نے سیکیورٹی بانڈز پر دستخط کیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بانڈ کی مدت کے دوران امن کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سیکیورٹی بانڈ ضبط کر لیا جائے گا اور ان افراد کے خلاف مزید قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور